Welcome back to my channel. Today we will study the reproduction in plants and animals. Continuing with the series of the class 8, the next chapter, reproduction in plants and animals. Now what is reproduction? As we have studied already in the beginning, the characteristic features of the living beings and non-living things. All living things reproduce the young ones of their own kind, right? All living things, they produce the young ones of their own kind. The process of giving young birth to their own kind is known as reproduction, right? That is called the reproduction. Now there are the various methods of the method: asexual method or sexual method. Asexual method of reproduction, when only one parent is needed, no gamete formation occurs, and the next generation is genetically alike to their parents, right? Two forms are there, that here no gamete formation, only one parent is required, no fertilization, fusion of the gametes takes place at all, and they are similar to their parent cell or the parent organ. Whereas in case of sexual reproduction, two organisms, male and females, are required. Both of them, reduction division occur, meiosis occurs during the formation of gametes in their reproductive parts, and half number of the chromosomes are formed. Again, male and female fertilize, and then they form the zygote. The zygote changes into the embryo, and then embryo give rise to the new organism which has the same number of the chromosome as that of the parent cell. रिप्रोडक्शन, जैसे कि हम जानते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कुत्ते पपीज को देते हैं, कैट किटन को देती है, सभी होते हैं. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द नेचर. If it is not there, the life, because the young ones are small kid, they are born, they grow up, become adult grew older, and then they die. If the new ones are not produced, how the continuity of the race, मतलब organisms, सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स पृथ्वी पर कैसे रहेगा? पृथ्वी पर ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल तभी तक है जब तक कि नए प्रोड्यूस होंगे. अगर नए रिप्रोड्यूस नहीं होंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर होंगे ही नहीं. Isn't it? The living organisms will not be here at all. So to maintain the continuity of the race, यानी कि मानव जात या कोई भी पशु पक्षी है, उसको मेंटेन करने के लिए उसे अपने ही तरह के दूसरे छोटे यंग वंस को रिप्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है. तभी तो वो स्पीसीज अर्थ सरफेस पर रह पाएगी, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि सब खत्म हो जाएंगे. तो उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत से, यहाँ पर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है. फर्स्ट वी आर हाउ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. Now there are the various methods by which asexual reproduction occurs in plant. That is the binary fission, multiple fission, spore formation, fragmentation, sporulation. Various methods are there. First, we are going to study with the asexual reproduction in plant, that is binary fission. Binary, when it takes place in lower plants, unicellular generally, as bacteria, fungi, algae, which are generally aquatic or in the mostly aquatic, or they are found in the nature in very microscopic forms they are present, जो आसपास एनवायरनमेंट में हमारे आंखों से द्वारा देखे नहीं जा सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. उन ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन में क्या होता है? ये जनरली सिंगल सेल्ड होते हैं, एक सेल है, उस सेल के अंदर क्या है? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और जेनेटिक मटेरियल थ्रू न्यूक्लियस इन दैट. ये जेनेटिक मटेरियल ये ग्रो करता है. जब जेनेटिक मटेरियल ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद क्या होता है कि ये जो सेल वॉल भी है ये आपस में कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, एनलार्ज्ड होगी, और इस फॉर्मेशन के बाद फिर अल्टीमेटली इसमें ये हुआ, फिर यहाँ पे सल्फेट फॉर्मेशन होकर के ये दोनों सेल्स अलग हो जाएंगे. तो इस तरह से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये मल्टीपल में डिवीजन होते चले थे. दिस टेक्स प्लेस व्हेन प्लेंटी ऑफ फूड इज देयर. एनवायरनमेंट में खाना अच्छी तरह से, तो ये जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट से खाना लेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं, तो उतना ही जल्दी ये ग्रो करेगा. जितनी जल्दी ग्रो करेगा, डीएनए डुप्लीकेट हुआ, जब डीएनए डुप्लीकेट हुआ तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 ऐसे बनते मल्टीपल
फॉर्म में डिवाइड होते जाएंगे। अगर मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, food is not there, so then what happens, they form a hard cyst around them. तब वो सेल क्या होता है, अपने बाहर जो है राउंड कवरिंग करता है, दैट इज दिस इज सिस्ट कवरिंग। सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिससे कि एनवायरमेंटल कंडीशन का असर सेल के ऊपर नहीं पड़ता है, उससे कोई मतलब। इसके बाद ये सेल जो है, ये क्या है, जो सिंगल न्यूक्लियस है, ये अपने अंदर मल्टीपल, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, 16, 32, इस तरह से ये सेल्स डिवाइड होते चले जाते हैं। व्हेन दे गो ऑन डिविजिंग एंड सिस्ट, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो सिस्ट डिसॉल्व हो जाता है और ये सारे न्यूक्लियाई निकलते हैं, एंड एवरी न्यूक्लियर बिहेव एज एन होल ऑर्गेनिज्म सेपरेटली। ये जैसे प्लाज्मोडियम है, अमीबा है, जो बाइनरी फिजन है, एल्गी है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, लोअर एनिमल्स होते हैं जो सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स है, उसमें होता है। मल्टीपल फिजन, ये भी जैसे प्लाज्मोडियम है, अमीबा है। प्लाज्मोडियम जिससे आपको मलेरिया होता है, ये कहाँ, ये आरबीसीज के अंदर रहता है, सर्वाइव करता है। अमीबा पॉन्ड्स, लेक्स, फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, एवरीवेयर इट इज प्रेजेंट। आसपास जहाँ भी तालाब में, पोखरों में, कहीं भी जलाशयों में, कहीं भी जहाँ पानी इकट्ठा होता है, वहाँ ये पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है बडिंग। ईस्ट आपने सुना होगा ना, जैसे ईस्ट आप अपने खाने में भी मोलेसेस ग्रो करते हैं, तो ईस्ट में क्या होता है, ये भी सिंगल सेल होता है, तो इसमें होता है बड होती है। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा में भी आपने देखा होगा, जैसे ये हाइड्रा है, तो इस हाइड्रा में यहाँ पर ये देखिए बड आ गई, ये बड ग्रो करेगी और फिर इसके बाद इसमें हाइड्रा, देन इट इज डिटैच्ड फ्रॉम हियर एंड देन इट बिहेव्स एज एन होल इंडिविजुअल। उसके बाद ये होल इंडिविजुअल की तरह। इसी तरह ईस्ट है, ईस्ट में जब प्लेंटी ऑफ फूड हुआ तो यहाँ से एक आउटग्रोथ निकली, उसे हम कहते हैं बड। बड, ये वहाँ से एक नई बर्ड फॉर्म हुई, तो कभी क्या होती है, बस से नई एक चेन ऑफ बर्ड्स फॉर्म हो जाती है, और उसके बाद हर चेन ये इससे अलग होकर के इंडिविजुअल अपना फंक्शन सेपरेट करती है। मतलब बर्ड्स ग्रो करती गई और करने के बाद वो पेरेंट से डिटैच हो गई, मीन्स इट ईट्स द फूड एंड आउटग्रोथ अपीयर्स, आउटग्रोथ गोज इनटू द एडल्ट, and then again a separate cell is formed. Now this separate cell separated from here or may attach, forming a chain also as in case of the yeast, or as a parent form detached and the new individual is formed. या तो उसी में चेन में होगा या उससे डिटैच होके हर सेल ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब जैसे टूट फूट हो जाए, जैसे स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, जो एल्गी है फ्रेश वाटर में होते हैं, उनमें क्या होता है, दे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कोई दो थ्रेड बीच से, जैसे मान लीजिए ये सिंगल सेल है, ये बीच से टूट गया एक्सीडेंटली या डेलिबरेटली, जैसे भी हुआ, मान लीजिए 2 से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और ये दोनों पार्ट ग्रो करके नया सेल बना लेंगे, एंड बोथ विल ग्रो, दे ब्रेक इनटू द फ्रेगमेंट्स एंड ईच वन विल ग्रो इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। बोथ ऑफ देम दे विल कंटिन्यू टू ग्रो इन देयर न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। अगर एक है, जैसे हाइड्रा है, अगर ये एक की जगह ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ये चारों पार्ट जो है एक नए इंडिविजुअल फ्रेगमेंटेशन के थ्रू बनवा लेंगे। बेस की तरफ सबस्ट्रेटम बनेगा, ऊपर से टेंटिकल्स निकलेंगे, यहाँ भी सबस्ट्रेटम होगा, यहाँ से टेंटिकल्स निकलेंगे। 4 पार्ट्स, अगर ये 2 है, अगर मान लीजिए 2 की जगह ये 4 में डिवाइड होगा, तो ये चारों पार्ट्स जो है वो अपने पूरा सेल फॉर्मेशन कर लेंगे, एंड 4 इंडिविजुअल्स विल बी formed there in spite of 2। 3 में होगा तो 3 हो जाएंगे, 6 में होगा तो 6 हो जाएंगे, जितने पार्ट्स डिवाइड, हर फ्रेगमेंट एक इंडिविजुअल को अपने आप में कंप्लीट कर लेगा, राइट। नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन यानी फंगस है, आपके टेरिडोफाइट्स है, फर्न्स हैं, मॉसेस हैं, इन सब में स्पोर फॉर्मेशन होता है। इनकी प्लांट बॉडी क्या है, फंगस प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ हाइफी, सिंपल स्ट्रक्चर्स आर देयर, this plant body and this is called hyphae। ये मल्टीन्यूक्लिएट होती है, इनमें फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है और ये हाइफी ग्रो करती है। अब इसी हाइफी में से ये स्पोरेंजियम ग्रो करती, इन्हीं हाइफी में से कोई एक ये ग्रो कर गया। अब यहाँ से ये कॉलीमेला होगा और इसके ऊपर स्पोर्स होंगे, ये हवा से ये स्पोर्स, मान लीजिए ये बस्ट हो गया, देन द स्पोर्स आर फ्री ओवर देयर इन द एयर and wherever they grow into the new individual। स्पोर्स है,
मैच्योर होते हैं, जैसे ही मैच्योर होंगे वॉल बस्ट होगी और एयर के थ्रू ये पूरे आसपास वातावरण में ये स्प्रेड हो जाते हैं. दे डिस्पर्स हियर एंड देयर विद द हेल्प ऑफ द एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आपके फंड्स होते हैं, फंड की लीफ होती है, लीफ की एजेस में स्पोर्स, जैसे ये लीफ है तो लीफ की एजेस में स्पोर्स होते हैं. आपने फंड की लीफ हो गमले में आप देखिएगा, पहले ये लाइट ब्राउन कलर के होंगे, फिर डार्क ब्राउन हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, फिर ये झड़ जाएंगे और झड़ने के बाद ये जहां भी आप स्पोर्स या आप इनको खोल के डाल देंगे वहां पर न्यू फंड का प्लांट डेवलप हो जाता है. So they develop into the by spore formation. Fungi. In fungi, reproduction takes place through spores only 90%. They grow through the spore. आपके पक्सिनिया है, अस्ट्रेलेगो है, स्मट है, रस्ट डिजीज है, जो वीट में पाई जाती हैं, बार्ले में होती हैं, विच आर वेरी कॉमन. पक्सिनिया डिजीज होती है, तो जो स्पोर्स के जरिए फॉर्मेशन जो रिप्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. Vegetative means vegetative, not it comes to the true plant part, that root, stem or leaf. If we grow the new plant from any root, stem or leaf, then the process is known as vegetative. Vegetative part, root, stem, propagation means to propagate, to grow. When they grow this plant, then it is called as vegetative propagation. Right? Now, as we have discussed here, the various asexual methods of reproduction in plant. Now, the next period, I'll go in detail about the vegetative propagation, that how through the different parts of plant, they give rise to the new plants. Thank you. Again, we'll meet in the next video.